Hello everyone, welcome to MDC Learning. So, in today's video, we are going to cover very important topic from FI BCom, that is selling cost and its effect. So, what is selling cost? First of all, selling cost is related to the advertisement, and it is one of the very important feature of monopolistic competition. As we know very well, in monopolistic market there are many sellers, and each and every seller selling substitute product like soft drink, Pepsi, Coca-Cola, Limca, Thumbs Up, these all are substitute product. So, to create awareness in the mind of customer and to create desire in the mind of customer toward the product and to create awareness in the mind of customer that we are existed, selling cost is playing very important role. Selling cost means when we advertise our commodity, when we spend money to advertise our commodity, that is called selling cost. And selling cost not only attract customer but it also help customer to remember that particular type of product available in the market. So what is selling cost and what are the forms of selling cost, that we understand first. So number one form of selling cost is advertisement. See, you have seen that various type of advertisement on television, radio, press, newspaper, magazine. So that help us to understand, to know that particular type of product available in the market, and these are the features of product. For example, advertisement of chocolate, advertisement of cold drink, advertisement of mobile phone. This help us to understand that particular product is available in the market. So advertisement on television, radio is the first form of selling cost. Next is exhibition. You must be observed that there are many products which are advertised in a form of exhibition. Exhibition means whatever product a person want to sell, he will decorate all the product in a particular area, then he will advertise कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है. देन कस्टमर यूज टू कम, दे सी द प्रोडक्ट, दे सी द प्राइस, एंड इफ दे लाइक इट देन दे विल परचेज इट. Especially exhibition of painting, exhibition of kurtis, you must be observed. Next is window dressing. Nowadays online shopping became very common. So nowadays we used to do online shopping, online order करते. So window dressing means advertisement on a ऑनलाइन फॉर्मेट. आजकल जब भी हमें कोई प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन उसका पिक्चर्स वगैरह, उसके कलर्स, उसके फीचर, प्राइजेस हम चेकआउट कर लेते. सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, वी कैन कंपेयर वन प्रोडक्ट विद अदर. आजकल स्पेशली इन पेंडेमिक पीरियड बहुत सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन ही मंगाई हैं. सो विंडो ड्रेसिंग इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ selling cost. Next is free sample. Free sample is also one type of selling cost. In free sample generally न्यूली स्टार्टेड कंपनीज, ये जो फ्री सैम्पलिंग मेथड है ये न्यूली स्टार्टेड कंपनी के लिए यूज़फुल है. व्हाट दे यूज टू डू, दे डिस्ट्रीब्यूट कमोडिटी फ्रीली टू ऑल द कस्टमर. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने नया वॉशिंग पाउडर स्टार्ट किया है तो कस्टमर को कलेक्ट करने के लिए दे विल सिलेक्ट वन एरिया, एंड ईच एंड एवरी एरिया दे विल डिस्ट्रीब्यूट द salesman, and salesman will distribute product to the people free of cost, and they will ask them, please you use this product, and if you like it then fill the form and keep with you, after 1 week will come and collect it. So free sampling भी एक तरह का selling cost ही है. Next is gift. Gift is also one type of selling cost. Gift means if you will purchase 2 kurti then you will get 1 free. इफ़ यू विल परचेज दिस प्रोडक्ट, तो ये उसके साथ फ्री है. अगर आपने फ्रीज खरीदा तो आपको कुकर फ्री मिलेगा. सो दीज आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सो गिफ्ट ऑल्सो अट्रैक्ट कंज्यूमर. इससे कंज्यूमर को अट्रैक्शन होता है प्रोडक्ट के तरफ. ही विल थिंक दैट ओ वाव, इफ़ विल परचेज फ्रिज देन विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट कुकर. सो गिफ्ट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ सेलिंग कॉस्ट. Next is sponsorship. Sponsorship generally you can find out in programs like a Ganpati festival, Garba festival. In that the people, those who sponsored, उस कंपनी के या उस दुकान के होर्डिंग्स लगाए जाते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी अंडरस्टैंड, ओ मार्केट में ये पर्टिकुलर शॉप भी है. सो स्पॉन्सरशिप करना इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेलिंग कॉस्ट. स्पॉन्सरशिप में जिस प्लेस के लिए जिस स्पॉन्सर ने पैसे दिए हैं उस प्लेस पर उस पर्टिकुलर पर्सन के शॉप के या कंपनी के होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन
के शॉप पर ये प्रोडक्ट मिलते हैं, और जितने भी लोग आएंगे उस होर्डिंग को देखते जाएंगे. सो इट क्रिएट एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट चीज़ एडिशनल डिस्काउंट. आपने कभी देखा होगा 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट. तो ये एडिशनल डिस्काउंट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेलिंग कॉस्ट. एडिशनल डिस्काउंट जनरली अट्रैक्ट फीमेल. जब ऐसा कहा जाता है कि 5 साड़ियों पे 20% डिस्काउंट, 10 साड़ियों पे 40% डिस्काउंट. सो इट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ सेलिंग कॉस्ट विच अट्रैक्ट मैनी कस्टमर टुवर्ड द प्रोडक्ट. Next is after sale service. After sale service is also form of selling cost. After sale service means how much guarantee and warranty we get if you purchase particular goods and services. And if after sale the guarantee and warranty is good and they are giving us good services, तो वो भी एक तरह का selling cost है. For example, अगर आपने एक AC purchase की and after sale वो जो company है they are providing you good service, then you will advertise, you will tell to people, अरे हमने ये कंपनी से AC परचेज किया, now we are getting good service. So it is also one form of selling cost. So in short, selling cost is a type of method which used by each and every producer to promote their product. And selling cost का main motto होता है to create desire in the mind of customer, to aware them and to tell them कि we are existed in the market. So selling cost की बहुत सारे format है. So that we have learned. Now we'll understand effects of selling cost. Selling cost क्यों की जाती है? Number 1 reason for selling cost is influence consumer desire to purchase. Selling cost करने का एक मतलब सेलिंग कॉस्ट मतलब हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों करते हैं. सो वी कैन क्रिएट डिज़ायर इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो हमें इसे परचेज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव सीन एडवर्टीजमेंट ऑफ पिज़्ज़ा. जब भी हम पिज़्ज़ा को देखते हैं तो दे शो अस इन सच अ वे कि हमें खाने का मन हो जाता है. सो सेलिंग कॉस्ट इन्फ्लुएंस डिज़ायर ऑफ कस्टमर. नेक्स्ट इज मेक अवेयर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट. सेलिंग कॉस्ट ऑलवेज हेल्प कस्टमर टू अंडरस्टैंड दैट कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसका एडवर्टीजमेंट ही नहीं किया, देन हाउ कस्टमर विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जिस्टेड इन द मार्केट. सो सेलिंग कॉस्ट की वजह से लोगों को ये पता चलता है कि पर्टिकुलर नाम का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. नेक्स्ट चीज़ इफेक्टिव सेलिंग कॉस्ट ऑलवेज शिफ्ट द डिमांड कर. अगर हमारा सेलिंग कॉस्ट अच्छा होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्पेंडिंग गुड, इफ़ यू डू गुड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारा डिमांड का भी शिफ्ट होता है, हमारा डिमांड का भी इंक्रीज होता है. नाउ विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. There are two diagram A and diagram B. In diagram A, now we'll understand कि सेलिंग कॉस्ट की वजह से डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है. सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड डायग्राम ए. इन डायग्राम ए वाई एक्सेस रिप्रेजेंट प्राइस, एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड. देन इन डायग्राम ए प्राइस इज फिक्स, दैट इज ओपी. डायग्राम ए में प्राइस को फिक्स रखा गया है, दैट इज ओपी. इट मीन दैट producer is not going to change in a price, but he will spend good amount of money on selling cost. So अगर फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं करता है बट वो एडवर्टाइजमेंट बहुत करता है, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, एट प्राइस ओपी, क्वांटिटी विल बी ओक्यू एंड डिमांड इज डी. अगेन ही विल स्पेंड मनी ऑन अ सेलिंग कॉस्ट एंड कीप द प्राइस कॉन्स्टेंट. तो क्वांटिटी हो जाएगी OQ1 देन OQ2. तो जैसे जैसे सेलिंग कॉस्ट पे वो पैसे स्पेंड करेगा और प्राइस को कांस्टेंट रखेगा तो उसका क्वांटिटी इंक्रीज होगा OQ2 OQ1, OQ1 to OQ2 and demand will also shift upward, that is D1 and D2. So with the help of selling cost, even though firm keep the price of product constant, तभी भी उसका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है. सेकेंड डायग्राम also wants to say same thing, that y axis represent price, x axis represent quantity demand. So second diagram में firm ने selling cost भी किया. It mean that firm spend money on a product, on a promotion, as well as he decrease the price. So initially the price of product is OP and the quantity is OQ and demand is DD. Then producer spend money on selling cost, along with that he decrease the price also. मतलब अपना प्रोडक्ट का वो एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है एज वेल एज ही डिक्रीज द प्राइस. सो नाउ ही डिक्रीज द प्राइस फ्रॉम OP to OP1. सो डिमांड जो पहले OQ था नाउ इट बिकेम OQ2.
सो यू कैन सी वेन एवर फर्म स्पेंड मनी ऑन सेलिंग कॉस्ट, उसके साथ अगर वो थोड़ा भी प्राइस कम करता है तो डिमांड जल्दी शिफ्ट होता है. प्रीवियस डिमांड वॉज डी डी, नाउ न्यू डिमांड इज DD1. Previous quantity was OQ and new quantity is OQ2. So what the point wants to say, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे टेलीविजन में कि ऐसे लिख कर आता है कि नाउ पर्टिकुलर टूथपेस्ट प्राइस इज़ नॉट 70 रुपीज़, इट इज़ 60 रुपीज़. सो अलॉन्ग विथ सेलिंग कॉस्ट उसने प्राइस भी कम किया. सो दैट विल इंक्रीज द डिमांड ड्रास्टिकली. नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉफिट वी यूज़ टू गेट फ्रॉम सेलिंग कॉस्ट. पहले डायग्राम में हमने ये देखा कि सेलिंग कॉस्ट के इफेक्ट क्या होते हैं. सेकेंड डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि सेलिंग कॉस्ट से प्रॉफिट कितना होता है. सो लुक एट द डायग्राम केयरफुली. इन द डायग्राम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट आउटपुट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम विथ नो सेलिंग कॉस्ट. मतलब अगर फर्म सेलिंग कॉस्ट नहीं करे, इफ फर्म विल नॉट प्रमोट द प्रोडक्ट और फर्म विल नॉट स्पेंड मनी ऑन अ सेलिंग कॉस्ट, तो क्या होगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा. So look at the diagram carefully. In the diagram, OP is the price of product, OQ is the output, and S is equilibrium point. So total revenue is OQSP. OQSP. Now we have to find out total cost. Formula of total cost is AC into Q. AC निकालने के लिए जिस पॉइंट से एवरेज कॉस्ट का पास होता दैट इज कॉल्ड AC पॉइंट. सो ईयर एट पॉइंट T APC कर्व, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट कर्व पास हो रहा है. सो T इज़ अ AC का पॉइंट एंड QT इज़ अ AC का लाइन. OQ इज़ आउटपुट. इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ N. सो टोटल कॉस्ट हो गया OQTN. टोटल रेवेन्यू इज़ OQSP. सो विदाउट सेलिंग कॉस्ट फर्म को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, NTSP. Now firm will involve into selling cost. Now we will find out equilibrium with selling cost. अगर firm selling cost पे पैसे खर्च करता है that time what type of profit he enjoy that will do. So now after selling cost new price is OP1, new output is OQ1 and equilibrium point is S1. So total revenue is OQ1 S1 P1. नाउ टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला AC इंटू क्यू. AC कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट से एवरेज कॉस्ट कर्व पास होता है. यहाँ पर T1 से एवरेज कॉस्ट कर्व पास हो रहा है. सी यहाँ पर देख लिया आप, AC जो है वो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट और एवरेज सेलिंग कॉस्ट का मिक्सचर है. मतलब हमने कितना प्रोड्यूस किया और हमने सेलिंग कॉस्ट पे कितना डाला, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं एवरेज कॉस्ट. सो आफ्टर सेलिंग कॉस्ट न्यू प्राइस इज OP1, आउटपुट इज OQ1, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज S. सो टोटल रेवेन्यू हो गया OQ1 S1 P1 एंड टोटल कॉस्ट हो गया OQ1 T1 N1. टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है AC इंटू Q. दोज हु आर कन्फ्यूज, आगे बहुत सारे वीडियो बने हैं, जस्ट गो थ्रू प्रॉपरली. सो आपको आइडिया आ जाएगा कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालना. ऑलरेडी वी हैव डन दिस कंसेप्ट इन अ Zoom क्लासेस. सो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है AC इंटू क्यू. क्यू तो हमें पता है दैट इज़ OQ1 और AC निकालने का आइडिया जिस पॉइंट से एवरेज कॉस्ट कर्व पास होता है. तो आप डायग्राम में देख रहे हो एट पॉइंट T1 एवरेज कॉस्ट कर्व पासेस और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है N1. सो टोटल कॉस्ट कितना हो गया OQ1 T1 N1 एंड टोटल रेवेन्यू OQ1 S1 P1. सो हियर टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर, टोटल कॉस्ट इज लेस देन टोटल रेवेन्यू. मीन्स आप देख रहे हो कि आफ्टर सेलिंग कॉस्ट फर्म इज गेटिंग मोर रेवेन्यू देन कॉस्ट. कितना रेवेन्यू है फर्म का OQ1 S1 P1. कितना कॉस्ट है OQ1 T1 N1. सो आफ्टर सेलिंग कॉस्ट फर्म को कितना प्रॉफिट मिल रहा है N1 T1 S1 P1 एंड बिफोर सेलिंग कॉस्ट फर्म को कितना प्रॉफिट मिल रहा था NTSP. So what the point wants to say that when firms spend money in a selling cost, or we can say when firms spend money to promote their product in any way, in any format, तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है. बिकॉज जितना आपके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होगा, एज प्रोड्यूसर विल स्पेंड मोर मनी फॉर द प्रमोशन, देन पीपल विल गेट अवेयर अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल जब भी कौन बनेगा करोड़पति आता है
तो एक एड में 3 बार डेयरी मिल्क का एडवर्टीजमेंट होता है। सो पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जितना आप सेलिंग कॉस्ट करोगे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बिकॉज कस्टमर को उतना अवेयरनेस आएगा। सो इक्विलिब्रियम विथ नो सेलिंग कॉस्ट में प्रॉफिट कितना है, NTSP। इक्विलिब्रियम विथ सेलिंग कॉस्ट में प्रॉफिट कितना है, N1 T1 S1 P1। सो आफ्टर selling cost firm profit also increase. So in this way you can understand the video. Look at the video carefully. It is very interesting from exam point of view. God bless you.